अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट पाकिस्तान्स नेशनल सिक्योरिटी इम्पेरेटिव्स, पाकिस्तान्स ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी determinants and challenges that Pakistan faces. All right. So सबसे पहले if we try to understand the traditional security determinants, तो basically these traditional security challenges or determinants are more conventional. These are the conventional aspects of the national security of a country. So one of the major traditional security determinants is the military strength. We know कि पाकिस्तान एक बहुत ही सिक्योरिटी कॉन्शियस स्टेट रही है सिंस द इंसेप्शन। यही वजह है कि पाकिस्तान प्लेसेस सिग्निफिकेंट एम्फेसिस ऑन इट्स मिलिट्री स्ट्रेंथ। दिस इज़ द रीज़न कि हमारा जो डिफेंस बजट है दैट्स ह्यूज। इसका मकसद यही है कि पाकिस्तान के पास अगर एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री होगी तो इट विल बी ईजियर फॉर पाकिस्तान टू प्रोटेक्ट इट्स सॉवरेनिटी. If we try to understand why Pakistan places a significant emphasis on its military strength, so obviously there are several reasons for this. Number one is the defense against external threats. We know that Pakistan has a history of conflict and tensions with its neighboring countries. जैसा कि हमारे काफ़ी पास्ट से ही टेंशन्स चलते आ रहे हैं हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ, इंक्लूडिंग अफ़गानिस्तान एंड ऑल्सो इंडिया। इंडिया के साथ तो हम काफ़ी सारी वॉर्स भी लड़ चुके हैं एंड ऑल्सो देयर आर द ऑनगोइंग डिस्प्यूट्स, स्पेशली द इशू ऑफ कश्मीर। सो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री बनाए, मेंटेन करे, विच इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट इट्स सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। क्योंकि अगर आपकी मिलिट्री स्ट्रॉन्ग होगी तो वो आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग डेटरेंट की तरह काम करेगी अगेंस्ट द एक्सटर्नल थ्रेट्स। उसके बाद क्यों ज़रूरी है मिलिट्री स्ट्रेंथ, तो देयर इज़ another reason for this, that is the nuclear deterrence. We know कि पाकिस्तान एक nuclear weapon state है. It's one of the 9 nuclear armed states. So again, a strong military is essential to support its nuclear deterrence policy. क्योंकि जब आपके पास एक capable और conventional military force होगी तो that quite complements with the nuclear deterrence capability. क्योंकि now you will be able to project your power. You will be ready to fight any aggression from the enemy state. तो आप दुनिया को ये एक पैगाम दे सकते हो कि if any state will take any offensive against Pakistan, so any aggression against Pakistan would be met with a strong response. All right. So next हमारे पास रीज़न है रीजनल सिक्योरिटी। तो अगेन आप जानते हैं कि पाकिस्तान हमेशा जियोपॉलिटिकली एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेट रही है। So Pakistan is actually situated in a geopolitically sensitive region that has complex security dynamics. क्योंकि it shares border with many states like Afghanistan, Iran, China and India. चाइना हमें अपने नॉर्थ में मिलेगा, इंडिया हमारे ईस्टर्न साइड पर है, अफ़गानिस्तान हमारे नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे है एंड ईरान हमें साउथ वेस्टर्न साइड पे मिलेगा. तो अगेन it's very essential to have a capable military to navigate the regional challenges and be able to maintain stability and peace. Another reason why we should have a strong military is the counter-terrorism operations. We know कि पाकिस्तान external challenges के अलावा काफ़ी ज़्यादा internal challenges भी face कर रहा है. Those internal security challenges are mainly from the terrorist groups that are operating along the borders or within the borders of Pakistan. तो अगर हमारे पास एक well equipped military होगी तो we'll be able to conduct the counter terrorism operations against these
non-state actors and the destabilizing terrorist groups, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी डोमेस्टिक स्टेबिलिटी को बरकरार रख पाएँ. Another thing why we should have strong military is that Pakistan has a strategic importance. क्योंकि जो पाकिस्तान की इम्पॉर्टेंट लोकेशन है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया एंड द मिडल ईस्ट. ठीक है, दिस इज़ द रीज़न कि पाकिस्तान इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट स्टेट स्ट्रेटजिकली. सो इफ़ पाकिस्तान हैज़ अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री प्रेजेंस इन द रीजन तो वो इसका इन्फ्लुएंस बढ़ाने में काफ़ी उसके लिए मददगार साबित होगा व्हेन इट कम्स टू द रीजनल पॉलिटिक्स एंड द इंटरनेशनल अफेयर्स. और अगर हम इसी चीज़ को, इसी पॉइंट को एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से देखते हैं तो अगेन वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीज़न कि वाई वी शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री इज़ दैट द हिस्टोरिकल राइवलरी विद इंडिया and the ongoing conflicts with India like कश्मीर इशू. हम ये जानते हैं कि कश्मीर इशू एक ऐसा इशू है पाकिस्तान के लिए जिसने शुरू से ही पाकिस्तान को एक सिक्योरिटी सेंट्रिक फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट करने पे मजबूर किया है. सो बेसिकली दिस इशू हैज़ शेप्ड द पाकिस्तान सिक्योरिटी आउटलुक. और कश्मीर इशू की बिना पर ही हमारी इंडिया के साथ वॉर्स हो चुकी हैं, तो इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने पास एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री रखें ताकि वक्त पड़ने पर वो पाकिस्तान की सवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को प्रिजर्व करने में हमारे लिए मददगार साबित हो. सो इस तरह Pakistan's emphasis on military strength is driven by the need to ensure national security and to protect its interests and also maintain stability in this volatile region of South Asia. So now our next Pakistan's national security determinant is the Kashmir conflict. So हम इस issue को भी एक traditional security issue कह सकते हैं that Pakistan faces for several reasons. Again, historical context कि this conflict dates back to the time of partition in 1947. और जो region है कश्मीर का it is actually decided between three countries and all these three countries are the nuclear armed states including India, Pakistan and China. और ये हमेशा से एक conflict की वजह बना रहा है among these all countries. So this historical context establishes it as a traditional issue that has persisted for decades. Again, there is another reason that a Kashmir conflict is a traditional security issue is the territorial dispute. We know that at its core, Kashmir issue is a territorial dispute between India and Pakistan, and both these states claim this region. So, इसलिए territorial disputes are basically the classic examples of traditional security challenges. All right, and next is the military engagement. We know that Kashmir issue has led to direct military engagement between India and Pakistan. जैसे कि हम देखें कि वॉर होती है 1947-48 की, तो the reason was Kashmir issue, and then in 1965 the core issue was Kashmir issue, and then उसके बाद 1999 में कारगिल वॉर होती है. तो ये तमाम हमारे पास prominent examples मौजूद हैं of the military confrontations related to Kashmir. So this is the reason why should we consider Kashmir conflict as our traditional security challenge. So ongoing tensions की बात करें तो we know कि the tensions between India and Pakistan remain unresolved. बल्कि जो अगस्त 5 के इंडिया ने एक्शंस लिए हैं यूनिलैटरल, उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच कोई कम्युनिकेशन नहीं है, and there are periodic clashes and skirmishes between these two countries at the borders. So this ongoing state of militarization reinforces the traditional nature of the Kashmir conflict. Another thing is the international recognition.
हम ये जानते हैं कि जो कश्मीर का कॉन्फ्लिक्ट है इट्स इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एज अ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इशू, और काफ़ी दफ़ा इस पर इंटरनेशनल फोरम्स पे डिस्कशन भी हो चुकी है, एंड मीडिएशन की ऑफर्स भी की गई हैं द इंटरनेशनल फोरम्स लाइक यूनाइटेड नेशंस, एंड इट्स क्वाइट अ सेंसिटिव इशू बिकॉज ये एक ऐसा इशू है जो कि दो न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स के बीच में है, जिसे ग्लोबल लेवल पे हमेशा से कंसर्न रहता है कि कहीं ये इशू इन दोनों कंट्रीज़ के बीच एक न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट करने का बहाना ना बन जाए. All right. So international involvement in attempts to resolve this conflict underscores its traditional security status. Now, if we talk about national identity and sovereignty, so we know that for Pakistan, this issue is deeply uh, important and sensitive when it comes to its national identity and sovereignty, क्योंकि पाकिस्तान इसको एक अपना इंटीग्रल पार्ट समझता है, and the dispute is seen as a challenge to its territorial integrity and national security. So this is what makes it a traditional security challenge for Pakistan. और अब अगर हम नेक्स्ट ट्रेडिशनल सिक्योरिटी डिटर्मिनेंट की बात करें तो दैट इज़ टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, which means कि you need to ensure the sovereignty and territorial integrity of Pakistan. वो आपके लिए supreme priority है. It's like guarding the walls of your house, all right? So it's considered a traditional security issue due to the following reasons. Number one is sovereignty and nationhood. We know that territorial integrity is linked to nation sovereignty and nationhood, और पाकिस्तान के लिए ये एक टॉप प्रायोरिटी है कि वो अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को सेफ गार्ड करे और इंश्योर करे कि उसके बॉर्डर्स इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज्ड हों, और पाकिस्तान की नेशनल जो सॉवरेनिटी है, सिक्योरिटी है, उसको रिस्पेक्ट किया जाए और उसकी वायलेशन ना की जाए एट एनी कॉस्ट. It should not be violated by the external actors. So any threats to the borders of Pakistan is perceived as a challenge to Pakistan's existence as a sovereign nation. ठीक है. Next is the historical context. हम ये जानते हैं कि पाकिस्तान हिस्ट्री इज़ एक्चुअली मार्क्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू इट्स बॉर्डर्स, क्योंकि एक तरफ कश्मीर का हमारा कॉन्फ्लिक्ट है विद इंडिया, और दूसरी साइड पे नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर की बात करें तो देयर इज़ द इशू ऑफ दुरंत लाइन, जो कि हमारा इशू है अफ़गानिस्तान के साथ. ठीक है. और इसके अलावा हमारा जो दूसरा नेबरिंग कंट्री है दैट इज़ ईरान, उसके साथ भी हमारी बॉर्डर इशू है. लाइक बलूचिस्तान साइड को वो अपना पार्ट समझता है एक तरह से. सो पाकिस्तान हैज़ हिस्टोरिकल challenges related to its borders, and these issues have deep rooted historical context, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि territorial integrity is actually a security challenge or national security determinant of Pakistan. सो अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को मेंटेन करने के लिए वी शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री, एंड फॉर दैट हमारे पास एक वेल प्रिपेयर्ड, वेल ट्रेंड और वेल इक्विप्ड आर्मी होनी चाहिए, फिर वो चाहे एयरफोर्स हो या फिर हमारी नेवी हो, ताकि हम किसी भी एक्सटर्नल एग्रेशन को डेटर कर सकें और इफ़ेक्टिवली रिस्पॉन्ड कर सकें और किसी भी थ्रेट्स को ख़त्म कर सकें. ठीक है. सो हम हमारी जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है उसको प्रिजर्व करने के लिए ट्रेडिशनल सिक्योरिटी मेजर्स लिए जाते हैं टू प्रिवेंट एनी ब्रीचेस. जहाँ तक पाकिस्तान के बॉर्डर्स की बात है तो दोज आर इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड, सो एनी डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू दैम आर एड्रेस्ड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड डिप्लोमेसी. So this international recognition further solidifies the traditional nature of these issues. So to summarize, territorial integrity को national security का determinant इसलिए माना जाता है क्योंकि it is related to the fundamental aspects of sovereignty, nationhood and national security. So protecting territorial integrity is a paramount concern for Pakistan's traditional security framework. Now next determinant is the conventional arms race.
इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान स्ट्राइव्स टू कीप अप विद इंडिया व्हेन इट कम्स टू द conventional military capabilities. So, conventional arms race between India and Pakistan is considered a traditional security issue. जैसा कि पाकिस्तान और इंडिया की बहुत ही पुरानी कॉन्फ्लिक्ट की हिस्ट्री रही है और राइवलरी रही है सिंस देयर इंडिपेंडेंस इन 1947 एंड दैट लेड टू मल्टीपल वॉर्स एंड द ऑनगोइंग टेंशंस. तो इन दोनों कंट्रीज़ ने क्या किया कि बोथ कंटिन्यूसली सॉट टू मेंटेन देयर मिलिट्री पैरिटी. ठीक है, विच मीन्स कि दोनों कंट्रीज़ ने ये कोशिश की कि वो अपनी कन्वेंशनल मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करें, ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करें और एडवांस्ड मिलिट्री इक्विपमेंट एक्वायर करें. So this historical context firmly places the conventional arms race in the category of traditional security concerns. So अब अगर हम conventional warfare की बात करें तो it primarily revolves around the development and acquisition of conventional military hardware and forces, जिसमें हमारे पास आ जाते हैं टैंक्स, आ जाते हैं आर्टलरी, आ जाती है फाइटर जेट्स, नेवल वेसल्स एंड अदर ट्रेडिशनल मिलिट्री एसेट्स आ जाते हैं. So the focus on military capabilities implies कि there is a readiness for conventional warfare, which again is the classic example of traditional security. So this implies the military preparedness. उसके बाद जो हमारे पास कन्वेंशनल आर्म्स रेस के लिए जो प्राइमरी ड्राइवर है दैट इज़ द अनरिजॉल्व्ड टेरिटोरियल disputes of Pakistan with the neighboring countries. All right, especially India, because वो हमारा एक ऐसा राइवल स्टेट है जो कि न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट है, तो उसके लिए पाकिस्तान की मिलिट्री पैरिटी होना बहुत ज़रूरी है. So these disputes have led to military confrontations and skirmishes in the past, which actually emphasizes the traditional nature of this challenge. उसके बाद अगर हम deterrence की बात करते हैं तो दोनों कंट्रीज़ इंडिया और पाकिस्तान दोनों अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को कंसीडर करते हैं एज अ मीन्स ऑफ deterrence. ठीक है, और दोनों का यही एम है टू प्रिवेंट द अदर फ्रॉम टेकिंग एनी एग्रेसिव एक्शन. और उसके लिए ज़रूरी होता है कि यू नीड टू शोकेस योर एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली इन केस देयर इज़ अ कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट. यानी कि दोनों साइड्स अपना एक बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करना चाहते हैं इन द डोमेन ऑफ कन्वेंशनल मिलिट्री कैपेबिलिटीज़. ठीक है, ताकि दोनों को एक दूसरे का पता हो कि अगर मैंने उस पर कोई उसके अगेंस्ट कोई एग्रेसिव एक्शन लिया तो द अदर साइड इज़ इक्वली केपेबल टू अटैक मी. तो इससे क्या होता है कि एक तरह की डेटरेंस क्रिएट हो जाती है एंड बोथ कंट्रीज़ एक्चुअली देन stay away from attacking one another. All right, so basically deterrence is a core concept within the traditional security strategies. So इसके लिए दोनों कंट्रीज़ क्या करते हैं, बोथ आर इन्वॉल्व इन दी आर्म्स प्रोक्योरमेंट. यानी कि दोनों कंट्रीज़ चाहते हैं कि हम अक्वायर करें, प्रोक्योर करें एडवांस्ड वेपनरी इंक्लूडिंग टैंक्स, एयरक्राफ्ट एंड द नेवल वेसल्स. ठीक है, तो दिस आर्म्स प्रोक्योरमेंट प्रोसेस एक्चुअली मिरर्स द ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ऑफ अक्वायरिंग मिलिट्री एसेट्स. तो ये एक सेंसिटिव एरिया है व्हेन वी टॉक अबाउट द नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस ऑफ पाकिस्तान. अब हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंज डिटर्मिनेंट है terrorism. वो इसलिए क्योंकि it has the potential to threaten Pakistan's stability by destabilizing the government and also by disrupting the public order. क्योंकि आप जानते हैं कि जो acts of terrorism होते हैं these cause the loss of lives, they damage property or they impact public safety. all right, और इसके लिए टेररिज्म के लिए कन्वेंशनल टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं जैसा कि बॉम्बिंग्स एंड शूटिंग्स. तो इसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान के मिलिट्री रिस्पॉन्स जो होता है टू कॉम्बैट टेररिज्म अंडरस्कोर्स इट्स ट्रेडिशनल सिक्योरिटी नेचर. ऑल राइट,
जिस तरह के हम जानते हैं टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो करंटली एक टेररिस्ट ग्रुप है जो कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी को थ्रेटन किए हुए है, उसका जो एम है, जो मकसद है, वो ये है कि वो पाकिस्तान के एरियाज़ पे अपना कंट्रोल कायम कर ले. सो दिस टेररिज्म challenges Pakistan's sovereignty by attempting to establish control over the regions. जैसे कि रिसेंटली भी टीटीपी ने हमले करके पाकिस्तान के इलाकों पर कंट्रोल अपना कायम करने की कोशिश की, लेकिन फिर वक्त पे काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन किया पाकिस्तान की मिलिट्री ने और वो कंट्रोल वापस ले लिया. सो आप इन चीज़ों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह दीज ग्रुप्स थ्रेटन्स पाकिस्तान सिक्योरिटी एंड पाकिस्तान नेशनल बॉर्डर्स. इसके अलावा हमारे जो रीजनल रिलेशंस हैं हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ और जो फ्रेंडली कंट्रीज़ के साथ, वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द टेररिज्म. इफ़ पाकिस्तान प्रूव्स टू बी अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर टेररिज्म और कल को वो जाकर किसी नेबरिंग स्टेट पर हमला करते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, तो इस तरह दिस हैज़ द पोटेंशियल टू स्ट्रेन पाकिस्तान्स रिलेशंस विद द रीजनल कंट्रीज़. और वैसे भी टेररिज्म को इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया जाता है एज अ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इशू. एंड ऑल्सो देयर इज़ कंसेंसस ऑन इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन दिस इशू ऑफ टेररिज्म ताकि इसको मुकम्मल तौर पे ख़त्म किया जा सके. सो काउंटर टेररिज्म के लिए जो स्ट्रेटजीज़ हैं, दोज मेनली इंक्लूड इंटेलिजेंस गैदरिंग, इंटेलिजेंस शेयरिंग एंड मिलिट्री काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस. तो ये तमाम चीज़ें हमें ये सजेस्ट करती हैं कि हाउ दिस इशू इज़ कन्वेंशनल इन नेचर. So overall, terrorism in Pakistan encompasses both domestic and regional security concerns within the traditional security framework. All right. So these were some of the major traditional security determinants of Pakistan's traditional security framework. इसके बाद अगर हम नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स डिटर्मिनेंट्स की बात करें तो उसमें ये सब आ जाते हैं जैसे कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी एंड religious extremism and regional geopolitics. And also it has some non-traditional security aspect in terms of nuclear deterrence also. सो अगर हम ये समझने की कोशिश करें कि किस तरह इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पाकिस्तान के लिए एक नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंज है, तो वी नो कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इन्फ्लुएंसेस अ नेशंस इंटरनल स्टेबिलिटी. इट अफेक्ट्स सोशल वेलबींग एंड इट इम्पैक्ट्स द रिसोर्स अवेलेबिलिटी. और अगर कोई नेशन इकोनॉमिकली अनस्टेबल हो जाती है तो इट लीड्स टू इंटरनल डिस्ट्रप्शंस एंड माइग्रेशंस, सिविल अनरेस्ट. तो ओवरऑल इस तरह जो कंट्री की सिक्योरिटी होती है वो ख़तरे में पड़ जाती है. जैसे कि करंटली हम विटनेस कर रहे हैं कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली बहुत डिटोरिएट कर रहा है, तो उसके नतीजे में वी आर सीइंग कि किस तरह लोग माइग्रेट करके यहाँ से जा रहे हैं और जो यहाँ स्टे कर रहे हैं पाकिस्तान में लोग, उनमें काफ़ी बेचैनी है रिलेटेड टू दी वर्सनिंग इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द कंट्री. सो जब इस तरह की नाउमीदी पैदा हो जाए किसी मुल्क में इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से, तो फिर दुश्मन इसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है और इस तरह जो कंट्री की नेशनल सिक्योरिटी है वो ख़तरे में पड़ सकती है. इसके अलावा इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी किसी भी कंट्री के जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उसको भी एडवर्सली इम्पेक्ट करती है. दिस इज़ द रीज़न दैट इट इज़ कंसिडर्ड एज अ नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट एंड कंसर्न. मोरोवर हम ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान जैसी सिक्योरिटी सेंट्रिक स्टेट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपनी मिलिट्री स्पेंडिंग को कम ना करे, because we have to maintain military parity with
आर एडवर्सरीज, ऑलराइट। तो जब कंट्री अनस्टेबल हो जाता है इकोनॉमिकली, तो उसी तरह उसकी जो मिलिट्री स्पेंडिंग है उस पर भी फ़र्क पड़ता है, उसको कम करना पड़ता है मजबूरन आपको। तो इस तरह क्या होगा कि आप अपने दुश्मन कंट्री के साथ मिलिट्री पैरिटी नहीं कायम कर पाएंगे और एडवांस्ड इक्विपमेंट और एसेट्स प्रोक्योर नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह इट थ्रेटन्स योर नेशनल सिक्योरिटी एंड वीकन्स यू एज इन कंपैरिजन टू योर एडवर्सरी। साथ ही जो एक अनस्टेबल स्टेट होती है, जो कि इकोनॉमिकली अनस्टेबल हो, वो काफ़ी वल्नरेबल होती है टू द एक्सटर्नल शॉक्स सच एज एनी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस और पेंडेमिक्स। दिस adds to its non-traditional nature. So we can say that economic stability has a broad reaching effects encompassing social, economic and diplomatic dimensions. So this is kind of a multifaceted non-traditional security challenge. इसके बाद हमारा नेक्स्ट नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी डिटर्मिनेंट है, चैलेंज है एनर्जी सिक्योरिटी। सो अब अगर हम ये समझें कि किस तरह ये एक नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंज है, तो वो इसलिए क्योंकि इट हैज़ इम्पैक्ट ऑन अ कंट्रीज़ इकोनॉमी। क्योंकि जब किसी कंट्री के पास इनसफिशिएंट और अनरिलायबल एनर्जी सप्लाई होगी, तो दिस विल डायरेक्टली इम्पैक्ट द कंट्रीज़ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्योंकि अगर किसी कंट्री के पास सफिशिएंट एनर्जी सप्लाई नहीं होगी, तो इट विल affect its industries, its manufacturing and production of goods and services. तो इस तरह क्या होगा, इंडस्ट्रीज़ और जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स हैं वो बंद होना शुरू हो जाएंगी। इससे अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी और जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होगी। एज अ रिज़ल्ट देयर विल बी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। इट ऑल्सो हैज़ इट्स सोशल इम्प्लीकेशंस, क्योंकि अगर एनर्जी शॉर्टेजेस होंगी तो इट विल डिस्टरप्ट दी डेली लाइफ। क्योंकि अगर बार बार लोड शेडिंग होगी, फ्रीक्वेंट पावर आउटेजेस होंगे, तो इट विल अफेक्ट इसेंशियल सर्विसेज लाइक हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड ऑल्सो पब्लिक सेफ्टी। सो जब सोशल वेलबींग अफेक्ट होना शुरू हो जाए तो ये एक पब्लिक अनरेस्ट क्रिएट करेगा। इट माइट रिजल्ट इन पब्लिक अनरेस्ट। तो इस तरह ये डायरेक्टली थ्रेटन करेगी आपकी नेशनल सिक्योरिटी को। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट इट्स अदर इम्पैक्ट्स, तो पब्लिक डिसकंटेंट नज़र आएगा हमें। जब पब्लिक अनरेस्ट क्रिएट होगा तो उसके नतीजे में हमें प्रोटेस्ट नज़र आएंगे और एक सोशल अनरेस्ट, उसमें एस्केलेशन नज़र आएगी। तो इट विल ऐड टू दी नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस ऑफ अ कंट्री। और इससे ये ख़तरा बहुत बढ़ जाएगा कि कंट्री की इंटरनल स्टेबिलिटी रिस्क में आ जाएगी एंड देयर विल बी अ थ्रेट टू दी अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। साथ ही जब कोई कंट्री अपनी इनसफिशिएंट एनर्जी सप्लाई की बिना पर अपने एनर्जी के लिए सॉल्यूशंस देखेगा और उसमें फॉसिल फ्यूल्स का या हाइड्रो पावर का इस्तेमाल बढ़ाएगा, तो इट विल हैव इट्स इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस। और जब इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे इन द फॉर्म ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड क्लाइमेट चेंज, तो इससे भी जो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट है वो पैदा होगा, such as there will be displacement of populations and resource scarcity. और साथ ही अगर हम अपनी इंडिजिनस एनर्जी सप्लाई को इंश्योर नहीं कर पाते, तो इन दैट केस पाकिस्तान को रिलाई करना पड़ेगा ऑन दी एनर्जी इंपोर्ट्स इंक्लूडिंग ऑयल एंड गैस। पाकिस्तान को रिलाई करना पड़ेगा ऑन दी अदर कंट्रीज़। तो जब किसी कंट्री की डिपेंडेंसी बढ़ जाए ऑन अदर कंट्रीज़, तो इट मेक्स द कंट्री वल्नरेबल टू इंटरनेशनल pressures and international price fluctuations, and also it makes the country vulnerable to supply disruptions। जैसा कि हमने कोविड के टाइम देखा था कि सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन थी, एंड तब जो ग्लोबल लेवल पे एनर्जी प्राइसेस में हमें चेंज नज़र आया, दैट वाज आल्सो ड्यू टू दी सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस।
and all the vulnerable countries were affected including Pakistan. So जब आपकी dependence external पे हो, foreign countries पे हो, तो that means कि you are very much vulnerable. So this poses a direct threat to your national security. So we can say that meeting Pakistan's energy needs is a non-traditional security challenge due to its wide-ranging effects on our economy, on social well-being, on resource distribution, and because of the environmental concerns and the international diplomacy and vulnerability to external factors. So this makes it a multifaceted, non-traditional security challenge for Pakistan. नेक्स्ट हमारा नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट है रिलेटेड टू वाटर रिसोर्सेज. वी नो कि पाकिस्तान इज़ वेरी मच वल्नरेबल टू वाटर स्कार्सिटी. वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान हैज़ डिपेंडेंस ऑन रिवर्स, पर्टिकुलरली द इंडस रिवर सिस्टम. सो इससे क्या होगा कि कंपटीशन फॉर दी लिमिटेड वाटर रिसोर्सेज, स्पेशली इन द रीजन्स विद water stress, this can lead to conflicts and disputes within the country and with the neighboring countries as well. इसके अलावा वी नो कि हमारी पाकिस्तान की इकॉनमी हाईली डिपेंडेंट है, हमारे कंट्री की जीडीपी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है ऑन द एग्रीकल्चरल सेक्टर, क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा लोगों का लाइवलीहुड एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है और तकरीबन 19 पॉइंट समथिंग हमारा जीडीपी का जो हिस्सा है दैट इज़ फ्रॉम द एग्रीकल्चरल सेक्टर. तो ऑब्वियसली जब वाटर स्कार्सिटी होगी तो ये डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगा ऑन आर एग्रीकल्चर. सो एग्रीकल्चर इज़ अ क्रिटिकल सेक्टर ऑफ पाकिस्तान्स इकॉनमी एंड रिलाइज हैवीली ऑन इरीगेशन. तो अगर वाटर शॉर्टेजेस होती हैं या फिर डिस्प्यूट होते हैं ओवर द वाटर एलोकेशन, तो दिस कैन हैव सिवियर इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज फॉर द कंट्री, ऑल्सो अफेक्टिंग द फूड प्रोडक्शन एंड आर पीपल्स लाइवलीहुड्स. ऑलराइट, तो ये आप देख रहे हैं कि किस तरह ये contribute कर सकता है towards instability and how it is a threat to our national security. इसके अलावा अगर water scarcity होगी तो there will be food insecurity also, क्योंकि reduced water availability can impact food security and it might lead to food shortages and rising food prices. So this in turn can lead to social unrest and discontent among the masses. So food security is another issue that may be caused, that has the potential to be caused due to the water insecurity or the lack of water supply and resources. उसके बाद इसका पाकिस्तान के रीजनल रिलेशंस पे भी एक इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि डिस्प्यूट ओवर वाटर रिसोर्सेज पर्टिकुलरली विद द नेबरिंग कंट्रीज़, जैसा कि इंडिया और अफ़गानिस्तान के साथ हमारा कुछ डिस्प्यूट है ओवर द वाटर रिसोर्सेज. सो दिस कैन फर्दर स्ट्रेन रिलेशंस विद दीज रीजनल कंट्रीज़. तो जो वाटर रिलेटेड टेंशंस होते हैं दे कैन हैव डिप्लोमेटिक एंड जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस जो कि एक्सटेंड करते हैं बियॉन्ड दी ट्रेडिशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स. जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया की जानिब से अक्सर पाकिस्तान को थ्रेट किया जाता है कि पाकिस्तान का जो वाटर सप्लाई है उसको रोक दिया जाएगा, या फिर ये भी थ्रेट्स दिए जाते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी को रिवोक कर दिया जाएगा यूनिलैटरली. ऑलराइट, सो दिस इज़ वेरी कंसर्निंग फॉर अ कंट्री that is largely dependent on water. इसके अलावा अगर आपके पास वाटर अवेलेबिलिटी प्रॉपर नहीं होगी तो देयर विल ऑलवेज़ बी अ थ्रेट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, क्योंकि जब वाटर अवेलेबल नहीं होगा तो इट विल cause drought-like situations. So drought-induced migrations and inadequate access to clean drinking water creates and further contributes to the non-traditional security challenges of Pakistan. क्योंकि इस तरह आपके लोगों को माइग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है, तो एक तरह से मास माइग्रेशन भी हो सकती है. दूसरा पब्लिक हेल्थ भी इम्पेक्ट हो सकती है एंड सोशल वेलबींग पे भी इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा. सो दिस इज़ the reason के water resources in Pakistan are a non-traditional security threat due to their potential to trigger conflicts and impact our agriculture and also impact our food security, and this has the potential to exacerbate climate related changes
all right, and it has the potential to strain our regional relations and escalate the cross-border disputes, and also it has the potential to contribute towards the humanitarian concerns. So also this water insecurity has a multifaceted nature of non-traditional security challenges, all right. जो हमारा अगला नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंज है, दैट इज़ रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म. सो रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, और इससे किसी भी कंट्री में इंटरनल इंस्टेबिलिटी क्रिएट की जा सकती है. तो रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स विच ऑपरेट विद इन पाकिस्तान can destabilize the country's internal security because these groups may engage in acts of violence. They may engage in acts of terrorism and insurgency, जिसका result क्या होगा? Social unrest and insecurity and concerns related to public safety. All right. उसके अलावा this issue has the potential to threaten the rule of law, क्योंकि जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज़ होती हैं वो अंडरमाइन करती हैं रूल ऑफ लॉ को, एंड दे एक्चुअली चैलेंज द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट. तो जब आपकी अथॉरिटी ऑफ स्टेट को चैलेंज करने वाले एलिमेंट्स पावरफुल हो जाएं, या फिर आपकी कंट्री का रूल ऑफ लॉ जो है वो थ्रेटन होने लगे, तो ऑब्वियसली देयर विल बी इरोजन ऑफ लीगल स्ट्रक्चर्स, देयर विल बी increased non-traditional security threat to countries' internal stability and national security, because वो इसलिए क्योंकि इससे गवर्नेंस आपकी वीक हो सकती है एंड आपका जो पब्लिक ट्रस्ट है इन इंस्टीट्यूशंस वो ख़त्म हो सकता है. और जब और अगर ऐसा हो जाए तो एक होपलेस सी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, विच इज़ नॉट गुड ऑब्वियसली. और हम ये जानते हैं कि माइनॉरिटीज़ को अक्सर टारगेट किया जाता है. रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म जो है इट्स ऑफन टारगेट्स द रिलीजियस एंड एथनिक माइनॉरिटीज़, जिसके रिज़ल्ट में हम देखते हैं कि ह्यूमन राइट्स वायलेशंस कमिट की जाती हैं, डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस के इवेंट्स हम होता हुआ देखते हैं. सो सच एक्शंस कैन क्रिएट नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स रिलेटेड टू सोशल कोहेशन एंड माइनॉरिटी राइट्स. और जिस कंट्री में माइनॉरिटीज़ की राइट्स को प्रोटेक्ट ना किया जा सके, उस कंट्री की इंटरनेशनल लेवल पे भी जो स्टैंडिंग होती है और जो रेपुटेशन होती है वो ख़राब हो जाती है. इसके अलावा हम अपनी कंट्री में रिलीजियस सेक्टेरियनिज़म भी देखते हैं. पाकिस्तान हैज़ एक्सपीरियंस्ड सेक्टेरियन वायलेंस ड्रिवन बाय द रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट्स, जिसके नतीजे में वी ऑफन सी कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड टेंशंस. तो ये जो सेक्टेरियन इश्यूज़ होते हैं ये कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टूवर्ड्स दी नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स विद इन द कंट्री. इसके अलावा जहाँ पे एक्सट्रीमिज़म होगा और जहाँ पर रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म के वाक़यात फ्रीक्वेंटली होते रहेंगे, तो उस कंट्री की इकॉनमी पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा. वो इसलिए क्योंकि ऐसे कंट्री में फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी और टूरिज़म नहीं हो पाएगा, और जब ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो देयर विल बी नो इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो द इकोनॉमिक रेपरकशंस ऑफ रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म फर्दर एम्फसाइज इट्स नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस फॉर द कंट्री. नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस तरह रीजनल जियोपॉलिटिक्स इज़ द रीज़न बिहाइंड नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट फॉर पाकिस्तान. तो सबसे पहले वी नो कि पाकिस्तान सिक्योरिटी is significantly influenced by its relationship with the neighboring countries and its relationship with the big powers like China and the United States. So these relationships impact the country's regional standing and security dynamics. All right. इसके अलावा हम देखते हैं कि पाकिस्तान की जो strategic alliances हैं and partnerships हैं, such as with China, we have China-Pakistan Economic Corridor, and on the other hand we are US's ally in the war on terror. So these both have negative and positive implications for security of Pakistan.
These alliances can bring economic opportunities, but also brings the geopolitical pressures that influence Pakistan's foreign policy. और रीजनल राइवलरीज भी कम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ रीजनल जियोपॉलिटिक्स. अब रीजन के हवाले से पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं विद इंडिया एंड अफगानिस्तान वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स with these neighbors can lead to regional instability and जो सिक्योरिटी challenges हैं वो मज़ीद बढ़ जाते हैं. इसके अलावा and our next non-traditional security challenge is the nuclear deterrence. अब ये nuclear deterrence एक ऐसा determinant है जो कि दोनों में आता है. It's a traditional as well as the non-traditional security determinant. तो जब पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स तैयार किए तो उसके पीछे पाकिस्तान का जो एम था दैट वाज टू डेटर एक्सटर्नल एग्रेशन एंड प्रोटेक्ट इट्स सॉवरेनिटी. और आज पाकिस्तान ये न्यूक्लियर वेपन्स पजेस करता है जो कि एक्ट करते हैं एज अ डेटरेंट अगेंस्ट कन्वेंशनल मिलिट्री थ्रेट्स फ्रॉम दी एडवर्सरीज. तो ये जो न्यूक्लियर डेटरेंस है पाकिस्तान के पास, दिस enhances Pakistan's security, but it also presents some non-proliferation challenges. अब पाकिस्तान के पास जो उसके न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो काफ़ी सेफ़ हैं, लेकिन फिर भी ग्लोबल लेवल पे इस हवाले से कंसर्न्स रेज़ किए जाते हैं कि द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स टेक्नोलॉजी और मटेरियल्स फ्रॉम पाकिस्तान टू अदर कंट्रीज़ और द नॉन स्टेट एक्टर्स इज़ अ कंसर्न फॉर द ग्लोबल कम्युनिटी. तो यहाँ पर पाकिस्तान के लिए ये चैलेंज है कि वो किस तरह ग्लोबल लेवल पे इस बात को मनवाए कि जो भी आर्म्ड मटेरियल पाकिस्तान के पास मौजूद है, न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं, दैट्स एब्सोल्युटली सेफ एंड पाकिस्तान विल मेक ऑल आउट एफर्ट्स टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स नॉन प्रोलिफरेशन एफर्ट्स. तो अब अगर हम पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी अप्रोच देखें तो इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट ऑफ पाकिस्तान कि पाकिस्तान अप्रोच टू नेशनल सिक्योरिटी इज़ ब्रॉड एंड प्रोएक्टिव. और इस डॉक्यूमेंट में दोनों ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस को प्रायोरिटाइज़ किया गया है, एड्रेस किया गया है. और इसका एम है टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ आवर टेरिटरी एंड द पाकिस्तानी सिटीजन्स. और जहाँ तक न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात है तो इस हवाले से पाकिस्तान का एक बहुत ही क्रूशल रोल है इन मेंटेनिंग रीजनल स्टेबिलिटी. जहाँ पाकिस्तान एक तरफ अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए अपनी न्यूक्लियर डेटरेंस को प्रायोरिटाइज़ करता है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान ऑल्सो एम्फसाइजेस ऑन द पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी in various fields such as in energy, medicine, agriculture and environmental conservation. और इस हवाले से पाकिस्तान के एफर्ट्स को काफ़ी एक्नॉलेज भी किया गया है एट द ग्लोबल लेवल बाय द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी. मोरोवर इफ़ वी सी कि व्हाट पाकिस्तान इज़ डूइंग इन टर्म्स ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, तो उसमें भी पाकिस्तान इज़ मेकिंग स्ट्राइड्स इंक्लूडिंग सैटेलाइट्स फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट, फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन. और जो हमारा स्पेस विजन 2047 है दैट pretty much aligns with the sustainable development goals because they address the issues like water, climate and health security. And if we talk about Pakistan's collaboration with China, तो we know कि China के साथ हमारी बहुत long standing और एक unique cooperation है, especially in the field of nuclear technology. हमारा उनके साथ जो 1989 में न्यूक्लियर कॉपरेशन एग्रीमेंट हुआ था दैट रिमेंस इंटैक्ट. उसके अलावा रिसेंट एडवांसमेंट्स की बात करें तो K2 जो न्यूक्लियर पावर प्लांट बिल्ड किया गया है दैट मार्क्स द स्ट्रेंथ ऑफ पाकिस्तान चाइना पार्टनरशिप इन द डोमेन ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी. इसके अलावा हमारे नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट में फोकस किया गया है ऑन सिटीजन सेफ्टी, प्रॉस्पेरिटी एंड डिग्निटी. और इस बात को एक्नॉलेज किया गया है कि एक स्टेबल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होगा अलॉन्ग विद स्ट्रॉन्ग डिफेंस, तभी हम कॉम्प्रिहेंसिवली अपने नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस को एड्रेस कर पाएंगे. और जहाँ तक पाकिस्तान की न्यूक्लियर पावर के हवाले से कमिटमेंट है वो यहाँ से शो होती है कि पाकिस्तान हैज़ कंसिस्टेंटली एडवोकेटेड फॉर न्यूक्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आर्म्स कंट्रोल. स्पेशली पाकिस्तान
ने ये इंटरेस्ट एक्सप्रेस किया है कि वो इंडिया के साथ निगोशिएट करना चाहता है फॉर द आर्म्स कंट्रोल. And Pakistan has also made various proposals for peace, including bilateral agreements with India, but obviously these have not been positively received and reciprocated. So overall, आप इस तमाम डिस्कशन से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि how all these challenges, traditional and non-traditional security challenges are interconnected, and therefore there is a need to address them comprehensively. So now let's end this discussion here. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू सो मच. टेक केयर. बाय बाय.